إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15، ان دو آیتوں کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور جیسا کہ ہم نے بار بار آپ سے یہ بات کہی ہے کہ آپ اپنے سامنے مصحف کو رکھیں، مصحف کھول لیں تو ان آیتوں کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی، اور آسانی سے آپ ان آیتوں کو سمجھیں گے، اور ان آیتوں کے تعلق سے جو بھی پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں انہیں بھی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج آیت نمبر 14 سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ جو آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش خدمت ہے، لیجئے آیت نمبر 14 اس کی تفسیر۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون۔ انہوں نے کہا، یعنی یوسف کے بھائیوں نے کہا جب ان کے باپ نے ذکر کیا ان کے سامنے کہ تمہارا یوسف کو یہاں سے لے کر کے جانا ہی مجھے غم میں مبتلا کر دے گا، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ یہ اندیشہ ہے کہ کہیں بھیڑیا انہیں کھا نہ جائے، اس حال میں کہ تم ان سے غافل رہو اور تم اپنے کھیل کود میں لگے رہو، اور تمہاری غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھیڑیا انہیں کھا نہ جائے۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی طرف سے انہیں نہ بھیجنے کے لیے عذر پیش کیا، اور میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں تین باتیں ذکر کی گئی تھی ان کی طرف سے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ ان کا باہر جانا ہی اپنے آپ میں یعقوب علیہ السلام کو پریشانی میں مبتلا کر دے گا۔ اب جب بھائیوں نے ان کے اس عذر کا جواب دیا ہے تو اس پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا انہوں نے، کیونکہ ان کا مقصد تو یوسف علیہ السلام کو لے کر کے جانا تھا، اور کسی بھی قیمت پر اس کام کو انجام دینا تھا، اسی لیے ہر اس بات کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا جو ان کے اس ارادے کے خلاف ہوتی ہو، کہ اگر اس کی طرف توجہ دیں گے تو پھر اپنے ارادے میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اور یہی ہوتا ہے جب کوئی آدمی کوئی چیز ٹھان لیتا ہے، پکا ارادہ کر لیتا ہے، اس کا جو موٹو ہے، اس کا جو ہدف ہے، اور اس کا جو مقصد ہے، ٹارگٹ ہے، اس کے راستے میں اگر کچھ چیزیں آتی ہیں اور کچھ پریشانی، کچھ چیزیں جو ہے تو اسے اگنور کرتے ہوئے
آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ دیکھیے بھائیوں نے اپنے غلط ارادے کو، وہ بھی کوئی اچھا کام نہیں، ایک غلط کام، تو چاہے دنیا میں کوئی اچھا کام ہو یا غلط کام ہو، جب کسی کام کو انجام دینا ہوتا ہے تو یہ اپنی جگہ پر بات مسلم ہے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ نے کسی کام کے کرنے کو ٹھان لیا ہے تو پھر جو مقصد کی طرف جو بھی قدم آگے بڑھانا ہے، ٹارگٹ کی طرف جو بھی قدم آگے بڑھانا ہے، وہ قدم آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اگر کچھ چیزیں ہیں جو اس ٹارگٹ سے ہٹا سکتی ہیں تو اسے اگنور کرنا، اس سے نظر کو پھیر لینا اور اپنے مقصد میں لگ جانا، یہ کسی بھی جو ہے معاملے میں کامیابی کے لیے بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ تو دیکھیں گے آپ بھائیوں نے، حالانکہ بھائی کوئی اچھے ارادے سے نہیں جا رہے تھے، کوئی اچھا مقصد نہیں تھا ان کا، لیکن بہرحال جو بھی مقصد تھا جو انہوں نے طے کیا تھا اور جسے وہ انجام دینا چاہتے تھے، اس کے لیے یعقوب علیہ السلام نے جو 3 باتیں پیش کی تھی، ان میں سے پہلی بات تھی کہ یوسف علیہ السلام کا یہاں سے لے کر کے تمہارا جانا، ان کو میری نظروں سے اوجھل کر دینا، دور لے جانا، یہ خود اپنے آپ میں میرے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیا انہوں نے، اور اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ نہیں ہم اپنے میں سے کسی کو آپ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، نہیں تھوڑی دیر کا تو معاملہ ہے، کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ اس بیکار کی بحث میں پڑیں گے تو مقصد سے دور ہو جائیں گے۔ ابھی جو ان کا مقصد ہے نا، اس مقصد سے دور ہو جائیں گے۔ دوسری بات کیا تھی؟ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں، اندیشہ ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب یہ بات، یہ اندیشے والی بات، یہی ایک بات تھی جس کا انہوں نے، اس کو دور کرنے کے تعلق سے انہوں نے یہ بات کہی ہے جو بات اب آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ کیونکہ اس اندیشے کو دور کر دینا اور باپ کو اس سلسلے میں اطمینان دلا دینا، یہ ان کے لیے آسان تھا، اسی لیے انہوں نے یہ بات تو پیش کر دی، اس عذر کو اور اس ایکسکیوز کے جو ہے سامنے رکھا اور اس کا جواب دے دیا کہ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ بھی اب بات، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، یہ جو تیسری بات تھی کہ تم اگر کہیں ادھر ادھر چلے گئے اور یا یوسف اکیلے رہ گئے، اور تم جان بوجھ کر کے تو ایسا نہیں کر سکتے، ان کو بھی یہ ہے کہ یہ لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں، تو کہا کہ لیکن تمہاری غفلت، کھیل کود میں آدمی مگن ہو جاتا ہے تو بعض چیزوں کی طرف سے دھیان بھی اٹھ جاتا ہے، توجہ بھی جو ہے ہٹ جاتی ہے، تو یہ ایک ڈر ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو اس کی طرف بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، اور اس کی طرف بھی اس کے تعلق سے بھی کوئی بات ذکر نہیں کہ یہ سب کچھ نہیں کہا کہ ہم تو انہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ان کی سیکورٹی کے لیے ان کے پاس رہے گا ہی رہے گا۔ کچھ بھی ایسا نہیں کہا۔ کیا کہا؟ صرف وہ جواب سنیے، قالو، انہوں نے کہا لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس لام کو لام جو ہے لام قسم کہتے ہیں، توطیۃ للقسم اسے کہا جاتا ہے۔ کہا کہ اللہ کی قسم، معنی ایسے ہی کیا جاتا ہے اسی لیے کہ اللہ کی قسم اگر بھیڑیا ان کو کھا جائے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، عصبہ یہ جو تنوین ہے عصبتن میں، تنوین دو پیش، یہ جو ہے قوت کو، کثرت کو، طاقت کو بتانے کے لیے ہے، مطلب ہے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ أَقْوِيَاء، کہ ہم بڑی طاقتور جماعت ہیں، ہم ایک دو آدمی نہیں، ایک پوری جماعت ہے، اور وہ بھی ہم بڑے زور آور ہیں، طاقتور ہیں، ہم کوئی بہت کمزور لوگ نہیں ہیں کہ ہمارے بارے میں آپ اس طرح کا سوچیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے انہیں بھیڑیا کھا جائے۔ تو کیا کہا؟ لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ،
वनहनु उसबह इन्ना इदल लखासिरून, कि अगर अल्लाह की कसम अगर इन्हें भेड़िया खा गया, हालांकि हम एक जोर आवर, ताकतवर और जो है बहुत ही पावरफुल जमात हैं, पावरफुल जमात हैं, हमारे होते हुए भेड़िया खा गया, तो इन्ना इदल लखासिरून, तो यकीनन हम तो बड़े खसारे में होंगे। ये खसारा तिजारत का खसारा नहीं है, ये नुकसान तिजारत का, बिजनेस का नुकसान नहीं है। ये नुकसान क्या है कि तब तो हम बिल्कुल नाकारा किस्म के लोग कहलाएंगे कि हमारे होते हुए, इतने भाइयों के होते हुए और इतनी जो है बासलाहियत और ताकतवर जोरावर भाइयों के होते हुए कोई यूसुफ का बाल बेका कर दे, कोई इनके साथ बदतमीजी कर दे, कोई इनके साथ कोई बुरी हरकत कर दे, और हम भाइयों के होते हुए, जोर आवर और ताकतवर जमात के होते हुए अगर ऐसा हो गया, तब तो समझिए कि हम बिल्कुल नाकारा लोग हैं। हालांकि आप जानते हैं, कहने का मतलब उनके कि आप जानते हैं कि हम भाइयों के ताल्लुक से आपके सामने हमारी पूरी तारीख है, हमारी सलाहियत को आप जानते हैं, हमारी ताकत को आप जानते हैं। हमारे होते हुए यूसुफ को कोई नुकसान पहुंच जाए, ऐसा आप मत सोचिए, और इसके बारे में आप इसको लेकर के हरगिज परेशान न होइए। ये उनका अंदाज था और इस अंदाज से उन्होंने बात को पेश किया। बहरहाल अब इसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने ये बातें इस अंदाज से पेश की, अब याकूब अलैहिस्सलाम भी उसके बाद खामोश हो गए और इजाज़त दे दी। अब ये जो कुछ बातें हुई उनके दरमियान, तो इन बातों के बाद नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को रवाना करने पर, उनके साथ भेजने पर याकूब अलैहिस्सलाम ने भी हामी भर ली और उन्होंने भी मान लिया कि ठीक है, हम यूसुफ को तुम्हारे साथ भेज देंगे। ये सब होने के बाद अब क्या है, उसको आगे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 15 में पेश किया है। आज का ये दर्स इसी आयत पर ख़ास तरीके से आधारित होगा, इसी जो है आयत से ताल्लुक़ रखेगा, उसी से मुताल्लिक़ है आज का दर्स। और इसके जो अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, तवज्जो दीजिएगा उसकी तरफ। इंशाअल्लाह आपके लिए अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से भी और तफसीर के लिहाज से भी और बच्चों की तरबियत और अपनी तरबियत और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है, इन सब के ताल्लुक से भी बहुत सी मुफीद बातें आपको इंशाअल्लाह इस आयत की तफसीर में मिलेंगी। तो क्या कहा, फलम्मा ज़हबू बिही, फलम्मा ज़हबू बिही, इस फा को अरबी में फ़ाउ तफरीक़ कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हज़फ कर दिया गया, जिन्हें जो है हज़फ कर दिया गया है, जिक्र नहीं किया गया है, उसकी ज़रूरत नहीं, वो अंडरस्टूड होती हैं। यानी इसका माना क्या है, फलम्मा ज़हबू बिही, जब वो लोग उनको लेकर के चले। अब लेकर के चले तो इसका मतलब ये है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी, और वो कल की बात थी कि कल जाना है तो इजाज़त दे दी, और उसके बाद जो है उन्होंने रात गुजारी, फिर सुबह में यूसुफ को साथ में लेकर के चले। तो ये इजाज़त देना, मुआफ़क़त करना, उनके साथ एग्री हो जाना, ये पूरा जो बहस व मुबाहसा था वो पूरा ख़त्म हो जाना, ये सारी बातें अंडरस्टूड हैं, क्योंकि उसके बगैर वो कैसे लेकर के जाएंगे जब तक कि ये मुआफ़क़त ना हो, और जब तक कि याकूब अलैहिस्सलाम उनके लिए उनकी उस बात पर एग्री ना कर लें, तब तक तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो वो अंडरस्टूड है। तो अरबी ज़बान का एक तरीक़ा यह है कि इस तरह की चीज़ों को हज़फ कर दिया जाता है जो अंडरस्टूड हैं, और इससे एक अहम फ़ायदा होता है अरबी बलागत के लिहाज से, जिसे ईजाज़ कहा जाता है। ईजाज़ का मतलब ये होता है
کہ کم الفاظ میں زیادہ معانی بیان کرنا، کم الفاظ میں زیادہ معانی پیش کرنا، جو ہے الفاظ بہت کم ہوتے ہیں اور لیکن جو معنی پیش کیا جاتا ہے، جو باتیں پیش کی جاتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ایجاز کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جو انڈر اسٹوڈ ہوتی ہیں اسے حذف کر دیا جاتا ہے، اور کسی بھی لینگویج میں، یہ صرف عربی زبان کی بات نہیں، کسی بھی لینگویج میں جو ہے یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے، اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ کم الفاظ میں زیادہ چیزیں کم جو ہے پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ بھی عربی بلاغت کا ایک حصہ ہے۔ یہاں کچھ چیزیں حذف کر دی گئی، اس کے بعد کیا کہا گیا؟ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب وہ لوگ ان کو لے کر کے چلے، کون لوگ؟ یا یوسف علیہ السلام کے بھائی، بہی میں جو ضمیر ہے پروناؤن وہ یوسف علیہ السلام کی طرف۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو لے کر کے چلے، یعنی اجازت مل گئی اور سارا جو بھی سامان وغیرہ پیک کرنا تھا، جو پیکنگ وغیرہ کرنی تھی، سب لے کر کے وہ جو ہے چلے، پھر کیا ہے؟ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، فی غیابت الجب، اجمعوا اجمع علیہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، کب یہ استعمال کیا جاتا ہے؟ جب کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیا گیا ہو، عزم کر لیا گیا ہو۔ اجمعوا یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ عزموا، they have decided، جب انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کس چیز کا؟ کہ یوسف کو جو ہے کنویں میں، یوسف کو ویران جگہ پر کنویں کی گہرائی میں ڈال دیا جائے۔ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ۔ یہاں چند باتیں، یعنی پوری آیت میں پورا ملا کر کے تو ہم آپ کے سامنے کم سے کم 10 پوائنٹ رکھیں گے، کم سے کم کہہ رہا ہوں یہ، لیکن پہلی بات تو آپ کے سامنے آ گئی، یہ فا جو ہے اس سے یہ معنی جو ہے عربی میں آ جاتا ہے کہ یہاں کچھ چیزیں حذف کر دی گئی ہیں، وہ انڈرسٹوڈ ہیں، آپ اسے سمجھ جائیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کو لے کر کے یہ لوگ چلے، ذَهَبُوا بِهِ، کیا کہا گیا ہے یہاں پر؟ ذَهَبُوا بِهِ، میں نے معنی کر دیا۔ یہ پوائنٹ جو دوسرا پوائنٹ ہے، اس پر ذرا غور کیجئے گا، کس انداز سے قرآن نے اس قصے کو پیش کیا ہے، اور اس سے بہت سی باتیں جو ہے پوائنٹ جو ہے بہت سارے کھل کر سامنے آتے ہیں۔ میں اردو میں کہوں تو یہ کہوں گا آپ سے کہ یہ کہا گیا یہاں پر کہ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، کہ جب وہ لوگ ان کو لے کر کے چلے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جب یوسف ان کے ساتھ چلے، یوسف ان کے ساتھ چلے، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب وہ لوگ یوسف کو ساتھ لے کر کے چلے۔ یہ قرآن کا انداز ہے بیان کرنے کا۔ یہاں مفسرین نے کچھ باتیں ذکر کی ہیں، اور وہ باتیں اگرچہ کہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہیں، کسی بھی صحیح حدیث میں، صحیح روایت میں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہوں گی، تو میں وہ بات پیش کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ بالکل صحیح روایتوں میں یہ تفسیر آئی ہوئی ہے، اگرچہ کہ اس طرح کی تفسیر جو ہے، جو تفسیر بالمعصور ہے، یعنی جیسے تفسیر طبری وغیرہ، اور جو ہے سلف کے اقوال اس میں ذکر کیے گئے ہیں اس طرح سے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی ایسی بات صحیح سند سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن وقت کا وہ تقاضا ہے۔ تو روایتوں میں یہ ذکر ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جب چلنا شروع کیے گھر سے، آپ خود بھی اس کا تصور کیجئے، جسے آپ کے آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں آپ اس کو، کہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ذہن میں وہ پورا تصور لائیے
इमेजिन या इमेजिन ऐसे कुछ कहते हैं इंग्लिश में शायद, कि वो आप जो है उसको अपने जहन में लाइए। ऐसे मौक़ों पर होता क्या है, होता यही है ना कि अब जो है सारे बेटे जा रहे हैं और जो है वो पिकनिक मनाएंगे, खेल कूद करेंगे, तो कुछ साजो सामान लेकर के जाएंगे, कुछ तोशे वगैरह लेकर के जाएंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम भी, अब चूंकि यूसुफ भी साथ में है, तो ये बिल्कुल बनता है कि वो भी थोड़ी दूर साथ में लेकर के जो है उन सबको छोड़ने के लिए जाएं, थोड़ा आगे तक जो है उनका साथ दे, फिर वापस घर को आ जाए। तो रिवायतों में ये है कि जब घर से निकले तो याकूब अलैहिस्सलाम को दिखाने के लिए इन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैदल चलने नहीं दिया, बल्कि उनमें से हर कोई बारी बारी उनको कंधे पर बैठा करके बड़ी इज्जत के साथ, बड़े प्यार के साथ और अपनी जान उनके ऊपर निछावर करते हुए, कुर्बान करते हुए, ऐसा जाहिर करते हुए अपने बाप के सामने इस तरह से उनको ले जा रहे थे। वो नोट कीजिएगा, ये जो है बातें बड़ी अहम होती हैं। ये जो अरबी के अल्फाज है ना, क्या है, फलम्मा ज़हबू बिही, जब ये लोग यानी याकूब अलैहिस्सलाम के भाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ को लेकर के चले, तो क्या हुआ उसके बाद आगे है। तो ये अंदाज था, जैसा कि बाज़ तफसीरों में इसको जिक्र किया गया है और हुआ होगा। यानी ये चीज़ ऐसी है, मैंने आपसे कहा कि ये वक्त का तकाजा है। उस जो है, अगर आप उस पूरे किस्से को इमेजिन करें, उसे तसव्वुर में लाएं, तो ये चीज़ें जो है ऐसे मौक़ों पर होती हैं। बाप को कायल करने के लिए कि देखो यूसुफ की मोहब्बत किस तरह से हमारे दिलों में ठाठें मार रही है और हम उन्हें कितना चाहते हैं। हम तो ये भी नहीं चाहते कि उनका पैर जमीन पर पड़े और कहीं ये छोटे यूसुफ थक जाएं और या इनके पैर में कहीं कोई चीज जो है, अब जंगल का रास्ता, बयाबा का रास्ता, सहरा का रास्ता, ये कोई आम जो है चलने फिरने का रास्ता ना हो, तो ऐसी जगहों पर बहुत कुछ जमीन पर पड़ा हुआ होता है। हम तो इन्हें अपनी गोद में हाथों हाथ ले करके जाएंगे, अपने बाप को ये वो दिखा रहे हैं। तो ये रिवायत में है कि उनको जो है बारी बारी ये अपने कंधों पर जो है बैठा करके ले जा रहे थे। बड़ी ऐसे मौक़ों पर जो है ये बड़ी लगावट की बात होती है। कभी बाप अपने बेटे को कंधे पर बैठाता है, उसमें उसके लिए बड़ी जो है मोहब्बत होती है, बड़ी चाहत होती है, बड़ा प्यार होता है। तो वही चाहत और प्यार का इजहार करते हुए ये भाई यूसुफ को लेकर के जा रहे हैं और ये भी जाहिर कर रहे हैं कि अब्बा जान, जबान से नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये उनकी पूरी हरकतें ये बता रही है, गोया कि जबाने हाल से ये कह रही हैं कि अब्बा जान, आप यूसुफ के मामले में निश्चिंत रहिए और जो है यूसुफ के मामले में आप मुतमईन रहिए। आप बाप हैं तो हम उसके बड़े भाई हैं और बड़े भाइयों का प्यार भी छोटे भाई के लिए ऐसे ही होता है जैसे बाप का प्यार अपनी औलाद के लिए उमड़ता है। तो हमारा प्यार भी इनके लिए देखो कैसे उमड़ रहा है। हम भी बाप की तरह अपने इस छोटे भाई को कंधों पर उठाए चल रहे हैं। यह है फलम्मा ज़हबू बिही। जी, और ये भी नोट कर लीजिएगा, जरूर इसे नोट कीजिएगा। मैंने बार बार आपको इल्मुन नफ्स जो है यानी साइकोलॉजी, इसके ताल्लुक से जो है बताया है और अक्सर जो है ख़ास तरीके से इस तरह के किस्से और कहानियों में उसका जिक्र करता रहता हूँ। यहाँ भी वो चीज़ है, नोट कर लीजिएगा। जब आप जान देखें कोई गैर मामूली हरकत, तो समझ जाइए कि ये सच्चाई नहीं
बल्कि दिलों में पाए जाने वाले झूठ को छुपाने की एक नाकाम कोशिश है। याद रखिए, ये जब जो चीज नॉर्मल अंदाज से होती है तो सामने वालों को शुभा नहीं होता और शुभा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कोई चीज गैर मामूली हो तब जो है वहां पर ये चीज वाजे हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये झूठ है ये। और ये सब चीज़ों को नोट करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी के लिए भी बड़ी फ़ायदे की चीज़ें हैं। इसलिए मैं तरबियत के और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ताल्लुक से भी ये बातें जिक्र करता रहता हूँ। वो बात क्या है, मैं आपके सामने पहले एक किस्सा बयान करता हूँ। वो सब साइकोलॉजी के ताल्लुक से है, तो मैं वो किस्सा बयान करूँगा तो आपको ये बात समझने में ज़्यादा आसानी होगी। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से तफसीर बयान करते हैं क्योंकि हमारा मकसद तो असल तरबियत है, तज़किये नफ्स है और लोगों को ज़िंदगी में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव जो होते हैं, तजर्बात, इन सब से लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है और तफसीर की रोशनी में वो चीज़ें हम आपके सामने पेश करते हैं। इस तज़किये नफ्स के दर्स में तो मैं कह रहा था आपसे कि एक किस्सा है, उसको जहन में रखिएगा, जो है तो समझने में और आसानी होगी और ज़िंदगी को समझने में भी और लोगों को समझने में भी आपको बड़ी आसानी होगी। एक जो एक औरत के ताल्लुक से ये बात जिक्र की गई है कि उसके जो है घर में आंगन में, ये घर जो है देहातों में जो घर होते थे ना, बीच में वो आंगन रखते थे, तो कभी कभी वहाँ दरख्त वगैरह भी लगा दिया करते थे। तो आंगन कहिए, सहन कहिए, जो भी है, वहाँ पर जो है एक दरख्त था। उस दरख्त पर कौवा आकर के, करो जिसे बोलते हैं आप, वो आकर के बैठता था। परिंदे तो आगे बैठते ही रहते हैं। तो बीवी ने अपने शौहर से कहा कि आप ये दरख्त कटवा दीजिए। क्यों? कहा कि यहाँ आकर के कौवा बैठता है और मैं नहा के निकलती हूँ, बाल वगैरह अपना बनाती हूँ और कभी ज़ेबो ज़ीनत में रहती हूँ, तो इस हालत में मुझे ये कौवा देख लेता है और मुझे ये पसंद नहीं है कि इस कैफियत में, इस हालत में मुझे आपके अलावा कोई और देखे। शौहर तो सुन करके क्या हो गया, बड़ा खुश, बाग बाग हो गया कि माशा अल्लाह, क्या औरत मिली है, इफ़्फ़तो पाक दामनी की तो ये मिसाल है। और यहाँ इफ़्फ़तो पाक दामनी आकर के खत्म हो जाती है। इतनी पाक दामन और इतनी अफीफ और इतनी जो है बागैरत बाहया एक खातून मेरी ज़ौजियत में है। दिल तो बड़ा खुश हो गया और फौरन दरख्त को कटवा दिया। ये गैर मामूली बात थी, याद रखिएगा। यही चीजें होती हैं जानने की, और ये साइकोलॉजी है। यहाँ अगर कोई आदमी अगर इस तरह का इल्म रखेगा तो फौरन जो है उसके दिल में कुछ ख्याल आना चाहिए था कि जाहिर सी बात है कि परिंदों का इसके देखने न देखने से क्या ताल्लुक है, उसकी इफ़्फ़तो पाक दामनी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बहरहाल अब ये बात कही तो लोग, कुछ लोग होते हैं ना कि फूल करके कुप्पा हो जाते हैं जब उनके सामने इस तरह की बात आती है, तो लोग इसी तरह की चीजों से फायदा उठाते हैं, इंसान की इसी तरह की नफ्सियात से फायदा उठाते हैं। और यही होता है जो चालाक आदमी होता है, होशियार आदमी होता है, जानकार आदमी होता है, वो इस तरह की बातों को समझ लेता है। तो क्या हुआ कि कटवा तो दिया उसने। एक दिन उसने, जो उसके घर वापसी का टाइम होता था, उससे पहले वो वापस आ गया, किसी काम किसी जरूरत से घर आया तो देखा बीवी किसी गैर मर्द की बाहों में, किसी गैर मर्द की बाहों में उसके बिस्तर पर वो नाजायज हरकतें कर रही है, जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। वहां देखा तो बीवी क्या है, गैर मर्द की बाहों में है।
बड़ा ताज्जुब हुआ उसको कि कहाँ इफ़्फ़त व पाकदामनी की तस्वीर जो है, जिसने कौवा कोई ना देखे उसको, उसके बारे में, और आज ये हाल है कि गैर मर्द की बाहों में है। यहां से उसके दिल में बात आई कि जो गैर मामूली तौर पर अपने आप को नेक, अमानतदार, ऐसा वैसा जाहिर करते हैं, तो समझ जाइए कि दाल में काला जरूर है, बल्कि बाज़ औक़ात तो पूरी दाल ही काली होती है। ये बात नोट कर लीजिए आप, यही इल्मुन नफ्स है, इसी को साइकोलॉजी कहते हैं। और ये चीजें जो लोग नहीं जानते वो लोग जो है जरूर इस तरह की परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं, उनको ये परेशानियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये बात जो है मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये गैर मामूली चीज थी। उसी जो है इलाके में एक उन्हें बादशाह के यहाँ कुछ चोरी हो गई या कहीं कुछ चोरी हो गई, तो ये आदमी जा रहा था। उसके बाद जो कुछ भी मामला हुआ, वो मैं चूंकि कहानी बयान करना मकसद नहीं है, लेकिन अब इसको एक तजुर्बा हो चुका था इस सिलसिले में। तो जा रहा था और जो है वो पूरा ढिढोरा पीटा जा रहा था कि ये सामान चोरी हुआ है और उसकी तलाशी ली जा रही है, लोगों की तलाशी ली जा रही, किसने चुराया है ये। तो इसने देखा रास्ते में एक इंतहाई जो है क्या कहते हैं राहिब जैसा आदमी, जो दुनिया छोड़ करके साधु संत बन जाते हैं, पादरी बन जाते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं ऐसा जाहिर करते हैं। हालांकि वैसे होते नहीं है, लेकिन ऐसा जाहिर करते हैं। ऐसे एक शख्स को इस तरह से बड़ा जो है नेक पारसा बन करके चलते हुए देखा, तो कहा यही चोर है। लोगों से कहा इसे पकड़ लो, यही चोर है। लोगों ने ताज्जुब किया, कैसे कह रहे हो? कहा पहले पकड़ लो इसको, बाद में पकड़ करके मालूम यानी तलाशी ली गई तो वही चोर था। कहा कैसे? कहा कि ये जो गैर मामूली उसकी हरकत थी, मुझे इसी से अंदाजा हुआ कि ये आदमी असल में नेक नहीं है, ये नेक होने का ढोंग रचा रहा है, ये ढोंगी है ये। क्योंकि वो पहले जो है किसी को, अपनी बीवी को ही इस सिलसिले में वो पकड़ चुका था। तो ये बातें होती हैं नोट करने की। जो आपने हमारे इस शहर बेंगलोर के ताल्लुक से तो आपको पता ही है, IMA और पता नहीं कौन कौन सी जो है तंजीमें आई, कौन कौन सी जो है तिजारती कंपनियां जो है लोगों को किस तरीके से उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, वो आपके सामने है वो बात। क्या आपने कभी सुना नहीं था कि किस तरह से दीनी कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, उनका बैनर लगना, उलमा के लिए जो है लिफाफों का इंतज़ाम करना, और जो है उनकी खातिर तवाज़ो और उनकी ज़बान से तारीफ़ के कलिमात किस तरह से निकलते जा रहे थे ऐसे लोगों के लिए। और ऐसा भी था कि फज्र की नमाज में पहली सफ में, मैं फज्र की नमाज में पहली सफ में। इसी तरह से एक और जो है मुर्गनाल या जो है ऐसे कुछ था, वो जो उसका शख्स था, उसके बारे में हमारे एक साथी ने बताया कि एक मरतबा मैं उसके साथ बैठा हुआ था, तो इस अंदाज से वो बातें कर रहा था कि मैं अपने आप को बड़ा छोटा महसूस किया, इतना नेक आदमी, और मैं उसके सामने जो है इतना छोटा, मेरी जबान से कुछ लफ्ज निकल गया, और हालांकि उतना गलत भी नहीं था वो, लेकिन उसका अरे नहीं नहीं ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए, जो है हम मुसलमान, यानी इस तरह से। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा मुत्तकी लगता है। असल में वही समझ जाना चाहिए था कि ये दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉडी हैं। यही होता है, इल्मुन नफ्स जानने वाला, साइकोलॉजी को जानने वाला इन सब चीजों को पकड़ लेता है। जो बहुत ज्यादा गैर मामूली तौर पर कुछ चीजें जो होने लगती हैं, तो समझ जाइए कि ये हकीकत नहीं है, बल्कि ये अपने चेहरों पर मखोटे। मैंने पहले भी आपसे ये कहा है कि बार बार कोई अल्लाह का नाम ले, अल्लाह ताला को भी तो मुंह दिखाना है, ये करना है, और ऐसा है वैसा है, बार बार अल्लाह की कसम, अल्लाह मेरा जानता है, तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ है अंदर। नेक लोग कभी इस अंदाज से बात नहीं करते। हकीकत में जो नेक होते हैं कभी भी इस अंदाज से, और कभी भी वो अपने आप को मुत्तकी जाहिर नहीं करते हैं। वो तो खुद ब खुद लोगों के लिए वो चीज़ जाहिर हो जाती है, वो खुद से, उनको जबान से कहना नहीं पड़ता है ये। तो बात इसकी तरफ आइए फिर से कि फलम्मा ज़हबू बिही, जब ये भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ को लेकर के चले,
जब तक याकूब अलैहिस्सलाम देखते रहे, रिवायतों में ये जिक्र है, मैंने आपसे कहा अगरचे कि कोई भी रिवायत इसमें से साबित नहीं है, लेकिन ये चीज़ें बाइद भी नहीं हैं। उस जो है वक्त का जो जिसे हम महसूस कर सकते हैं और उसको तसव्वुर कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हुई होंगी। जब याकूब अलैहिस्सलाम घर को वापस हो गए और नज़रों से ओझल हो गए, अब नहीं देख रहे हैं, तो कहा, उन जो है तफसीर की किताबों में ये लिखा हुआ है कि फिर तो इनको ज़मीन पर पटका, और अगर वो रहम की कोई दरख्वास्त करते तो तमाचे रसीद होते, उनको उनको मारते, तकलीफ़ें पहुंचाते हुए लेकर के आगे बढ़े। क्योंकि जो ज़बरदस्ती का बोझ होता है किसी को दिखाने के लिए, तो जैसे ही वो ख़त्म होता है, यानी जो देखने वाला है वो ख़त्म होता है, वैसे ही वो बोझ जल्दी से नागवारी के साथ फेंक दिया जाता है। ये हकीकत है, ये भी जो है नफ्सियात की चीज़ है ये। तो यकीनन ये चीज़ इसी तरह से हुई होगी कि जैसे ही बाप निगाहों से ओझल हुए, वैसे ही यूसुफ को ज़मीन पर और बाद में तकलीफ़ें पहुंचाते हुए, क्योंकि दिल की भड़ास तो निकालना है ना। अब तक जो मामला था, दिलों में हसद की आग जो भड़क रही थी, उसकी वजह से दिलों की भड़ास को निकालना है, तो यकीनन वो तकलीफ भी पहुंचाए होंगे। तकलीफ पहुंचाते हुए उनको लेकर के आगे बढ़ते हैं, और जब कुएं के पास पहुंचते हैं, जिस कुएं में डालना तय हुआ वहां पहुंचते हैं, तो क्या होता है, कहा वअजमाऊ अन यजअलूहु फी गयाबतिल जुब्ब, और उन्होंने पक्का इरादा कर लिया, कहीं कोई शुबहे की गुंजाइश नहीं, बहसो मुबाहसा का कोई मामला नहीं। कोई ये ना सोचे इस किस्से को पढ़ते हुए, सुनते हुए, कि हो सकता है कि बाज भाइयों के दिल में कुछ जो है रहम का पहलू आ गया हो और उन्होंने फिर मुखालफत कर ली हो, नहीं नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं डालने दूंगा, और ऐसा कुछ नहीं। अजमाओ, यहाँ बाज मुफस्सिरीन ने, ये तीसरा पॉइंट है, लेकिन यहाँ ये बात बताऊं कि बाज मुफस्सिरीन ने ये जिक्र किया है खास तरीके से यहूजा के बारे में, कि उसने मुखालफत की इसकी, नहीं नहीं, आप लोग इन्हें मत मारिए, मत कत्ल कीजिए। वो लोग तो इतना उन्हें मार रहे थे कि लगता था कि कत्ल ही कर देंगे। तो ये जो है बीच में यहूजा ने बार बार मना किया, यहाँ तक कि कुएं में डालने के बाद भी वो खाना वगैरह ला करके उनको पहुंचाता रहा। ये सब जो है तफसीर की बाज़ किताबों में जिक्र किया गया। यानी यहूजा को खास तरीके से ज़रा इसमें अच्छा बना करके पेश करने की कोशिश की गई है। हालांकि कुरान में कहीं इसका जिक्र नहीं, सही रिवायतों में कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है। और मुझे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपसे, यहूजा असल में यहूदियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये यहूदी जो नाम है, ये एक निस्बत है यहूजा की तरफ, जो कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक जो है बेटा है, उसी से जो है ये निस्बत है। तो अब हो सकता है कि ये बातें यहूदियों की तरफ से ही आई हों, क्योंकि तफसीर की किताबों में इसराइलियात से, यानी बनी इसराइल से ली गई बातें, जो यहूदी थे उस ज़माने में, उनसे सुनी सुनाई बातें भी तफसीर की किताबों में ज़िक्र की गई हैं। इसीलिए हमको बहुत एहतियात के साथ ये बातें पढ़नी होती हैं, समझनी होती हैं। और अगर कहीं ऐसा शुबहा होता है कि ये चीज़ें यहूदियों की तरफ से आई हैं, तो ज़रा वहाँ अपने दामन को संभाल करके ही आगे बढ़ना होता है। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो है बात जहन में आती है मेरे, कि कहीं ये उन्हीं की तरफ से लाई गई बातें ना हो। उसके बाद क्या है कि वह अजमाऊ, उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया। कहीं कुछ ये नहीं रहा कि डालें ना डालें, क्या करें, कहीं ऐसा ना हो परेशानी हो जाए, बाप हमारे परेशान हो जाए, कुछ इस तरह से चीज़ें कहीं जो है किसी के ख्याल तसव्वुर में आ सकती हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उन्होंने पक्का इरादा कर लिया, अन यजअलूहु फी गयाबतिल जुब्बी। अब यहाँ इस लफ्ज पर गौर कीजिए, अन यजअलूहु, अन यजअलूहु,
यानी ये नहीं कहा गया है अरबी में कि अन युल्कूहु, जबकि ऊपर से नीचे किसी चीज को डालना हो तो अरबी में उसे क्या कहा जाता है? अरबी में उसके लिए कहा जाता है कि इल्का, अन युल्कूहु, ये लफ्ज आते हैं। यहाँ क्या कहा गया? यजअलूहु, अन यजअलूहु, जाला का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि उनको कुएं में, कुएं की गहराई में कर दें। उन्होंने पक्का इरादा कर लिया, तो माना क्या करेंगे हम? कुएं की गहराई में उनको कर दें। यहाँ उनको डाल दें, फेंक दें, ऐसा कोई लफ्ज नहीं आया हुआ है। फेंकने के लिए भी अरबी ज़बान में दूसरा लफ्ज आता है, बहुत सारे अल्फाज आते हैं, नबज़ा, जो है इसी तरीके से जो है ये भी आता है कि किसी भी चीज़ को जब फेंकना होता है तो मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं, उसमें से एक नबज़ा भी है। अगरचे कि नबज़ा में जो फेंकने का होता है वो नीचे डालने का ज़्यादा उसमें नहीं आता है। तो इसी तरीके से कुएं में किसी चीज़ को लटकाना होता है तो अरबी में उसको अदला भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब अल्फाज जो है इस्तेमाल नहीं किए गए यहाँ पर जो है। नबज़ा, क़ज़फ़ा, ये सब अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए। क्या इस्तेमाल किया गया है? इसी तरह से रमा भी कहते हैं, रमा बिही फिल बीर, तो उस तरह का भी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया। क्या कहा गया? अन यजअलूहु फी गयाबतिल जुब्बी, कि उनको इस कुएं की गहराई में जो है रख दें, कर दें उनको। ये जो लफ्ज़ है इसमें क्या है, क्या शक्ल हुई होगी उसका जो है एक ये मैंने पहले आपसे कहा था कि कुआं अगर बहुत गहरा है और पानी बहुत ज़्यादा है तो अंदर जैसे उनको फेंका जाएगा वहाँ से, ऊपर से ऐसे धक्का दे दिया गया तो क्या होगा? धक्का दे दिया गया तो उसमें गिरे तो दो हाल से खाली नहीं। पानी बहुत ज़्यादा है तो डूब जाने का मसला है, पानी बहुत कम है तो चोटें बहुत ज़्यादा, क्योंकि गहराई में है तो चोट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, उसमें भी मर जाने का डर है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे तस्वुर आते हैं। तो क्या है इसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है, और ये अल्फाज अन यजअलूहु उस बात की तायीद करते हैं कि इन्होंने फेंकने के बजाय, अपने भाई को ऐसे फेंक देने के बजाय, उनको डाल देने के बजाय ऊपर से ऐसे ही क्या किया कि इसको जो डोल वगैरह होता था उनका, वो डोल जो है वो उसमें उनको रखा, उनको डाला। अब यहाँ मसला ये होगा कि अब जब डोल वगैरह में रख करके उनको नीचे उतारना चाहेंगे तो अब वो उनके हाथ हैं तो हाथ से या तो रस्सी पकड़ेंगे, अपने आप को जो है नीचे न गिरे उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे, या बाज़ रिवायतों में, तफसीर की बाज़ किताबों में ये है कि वो इधर उधर पकड़ ले रहे थे तो भाइयों ने उनके हाथ को बांध दिया ताकि वो ये सब कुछ ना कर सकें। इस तरह से उन्हें डोल में नीचे उतारे जैसा किया, इन्होंने उतारने जैसा किया। जब नीचे करीब पहुंच गए, जब थोड़ा मतलब जो बाज़ जो है तफसीर किताबों की आधा रास्ता हो गया, तब जो है एक भाई ने रस्सी काट दिया, और बाज़ रिवायत, बाज़ जो है तफसीर की किताबों में ये है कि फिर उन्होंने रस्सी छोड़ दिया जब वो करीब की तरफ पहुंच गए। तो ये इस तरह से पानी तक जो है पहुंचे वो, ये सारी चीजें जो है। और ये पूरा जो है अन यजअलूहु, ये जो अरबी का लफ्ज है ना, उससे भी इसका अंदाजा होता है कि जो लफ्ज कहा है कुरान ने, इस सिलसिले में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उससे ये इस माने की झलक जो है पाई जाती है, इस लफ्ज में इस माने की झलक पाई जाती है। जी हाँ, अब यहाँ पर यह है कि फलम्मा ज़हबू बिही, जो थोड़ी अरबी ज़बान जानते हैं उनके लिए ये पॉइंट जिक्र कर दूं कि फलम्मा ज़हबू बिही व अजमाऊ, कि जब ये लोग यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ को लेकर के आगे बढ़े और पक्का इरादा कर लिया कि उनको कुएं की गहराई में रख दें, वहाँ जो है उन्हें छोड़ दें।
तब क्या हुआ, आगे है वअवहैना। ये वाव क्या है, ये अवहैना उसका जवाब है या नहीं है। तो ये लम्मा जो आया हुआ ना, इसको अरबी में शर्तिया कहा जाता है, शर्त के लिए है ये, कंडीशन। कोई जो है शर्त जो है, अरबी में अदवात शर्त कहलाते हैं। तो ये अरबिक लैंग्वेज के जो एडवांस ग्रामर है उसमें ये चीज़ आती है। तो ये शर्त है, तो शर्त का जवाब भी आना चाहिए। तो सही बात यहाँ ये है कि उसका जवाब यहाँ पर हज़फ है, यानी उन्होंने पक्का इरादा कर लिया। पक्का इरादा करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने उन्हें उस जो है गहराई में उन्हें डाल दिया, वहां उन्हें कर दिया। तब क्या हुआ आगे, आगे उसका बयान है। और आज का ये दर्स हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त जो है हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। हमारे सामने लगी हुई जो घड़ी है, वो घड़ी कह रही है कि वक्त हो चुका है, दर्स को यहाँ रोक दिया जाए। और अगर आपको ख्वाहिश है कि जाने कि आगे क्या हुआ, फिर जो है वो अवहैना, ये क्या पॉइंट है कि हमने वह्य किया, इस वह्य की क्या शक्ल थी, क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम उस कुएं में आए, नहीं आए, कैसे जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें महफूज रह गए। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते इसी दिन इसी वक्त यानी 9 बजे आपके सामने इसी लिंक पर, जिस पर आज आपने दर्स सुना है, उसी पर आपके सामने फिर आगे के जो पॉइंट्स हैं इंशाअल्लाह आपके सामने पेश किए जाएंगे। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।